हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब IQ। पंजाब IQ ਦੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ 1, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ 20 ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ। ਇਹ ਜੋ 20 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ 20 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਜਾਂ ਫਿਰ 16 ਕੁਐਸਚਨਸ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਹ PPSC ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹਾਰਡ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਜੋ PCS ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, UPSC ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਲਈ ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ 1 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਹਿਤ ਗਰਗ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੇ ਇਹਨਾਂ 20 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸਹੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪੁੱਟ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਫਸਟ ਪਬਲਿਕ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਆਫਟਰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਫਰੋਮ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਇਨ 1915। यानी ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ 1915 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਖੇੜਾ, ਚੰਪਾਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ BHU। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ 9 ਜਨਵਰੀ 1915 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। 9 ਜਨਵਰੀ 1915 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ NRI ਡੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ ਇਹ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ 1915 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੂ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਥਰ ਆਫ ਦਾ ਬੁੱਕ ਗਾਂਧੀ ਐਜ਼ ਮਹਾਤਮਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇਸਾਈ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਐਮਿਨ, ਲੂਇਸ ਫਿਸ਼ਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੇਵਿਡ ਅਰਨੋਲਡ। ਗਾਂਧੀ ਐਜ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਐਮਿਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਮਿਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, UPSC ਦਾ EPFO ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਐਜ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਮਿਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੂ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਤਾਬੀ ਸੀਤਾਰਾਮਈਆ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂ ਫਿਰ JB ਕਿਰਪਲਾਨੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ JB ਕਿਰਪਲਾਨੀ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ JB ਕਿਰਪਲਾਨੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਵੂਮਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਫੀਮੇਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਬਣੀ ਸੀ? ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਫਸਟ ਵੂਮਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਨੀ ਬੀਸੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨੀ ਬੀਸੈਂਟ, ਬਟ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫਸਟ ਮਹਿਲਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮਨ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੀ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ।
सरोजनी नायडू। यह क्वेश्चन भी आपको एग्जाम के पूछे जा चुके हैं और तुमने मैंने कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दसना है कि जो इंडियन नैशनल कांग्रेस सी इसके जो पहले प्रेजिडेंट बने सी वो कौन बने सी। इसका आंसर तुम मैंने कमेंट बॉक्स के लिख के दसना है। ठीक है जी, इसका आंसर बनेगा अपना डी ऑप्शन JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4 नंबर क्वेश्चन। ड्यूरिंग 1931 अंडर हुज लीडरशिप डिड अ स्ट्रॉन्ग किसान सभा मूवमेंट डिवेलप इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गया बिहार। यानी बिहार स्टेट के विच एक जिला है जिसका नाम है गया। इत्थे एक किसान सभा मूवमेंट है जी इसनों डिवेलप किया गया सी। आपां नूं पुछया गया कि इसकी अगवाई दे विच किसदी लीडरशिप दे विच इसनों एस्टैबलिश किया गया सी, डिवेलप किया गया सी किसान सभा मूवमेंट नूं 1931 ईस्वी दे विच। आपां नूं पुछया गया है किसदी अगवाई दे विच इसनों डिवेलप किया गया सी। ऑप्शन आपां नूं दिते गए ने यादू नंदन शर्मा, सहजनंद, शीतला सहाय या फिर तिलका मंजी। यह 4 ऑप्शन दिते गए हैं और इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है अपना वो है सहजनंद सरस्वती। इन्हां दा पूरा नाम है सहजनंद सरस्वती। इस क्वेश्चन का आंसर किहड़ा बनेगा अपना बी ऑप्शन बनेगा। सहजनंद सरस्वती जो सी इन्हां दी अगवाई दे विच 1931 ईस्वी दे विच किसान सभा मूवमेंट है जी इसनों डिवेलप किया गया सी बिहार के गाया जिले के विच। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन सहजनंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5 नंबर क्वेश्चन। हु प्रोड्यूस्ड द पिरपुर रिपोर्ट 1938। यानी एक रिपोर्ट पब्लिश की गई सी, प्रोड्यूस की गई सी। इस रिपोर्ट का नाम है पिरपुर रिपोर्ट। यह 1938 के विच इसनों प्रोड्यूस किया गया सी। आपां नूं पुछया गया किस दे द्वारा इसनों प्रोड्यूस किया गया सी इस रिपोर्ट नूं। ऑप्शन दिते गए हैं मुस्लिम लीग, यूनियनिस्ट पार्टी, अरहर पार्टी या फिर इंडियन नैशनल कांग्रेस। पिरपुर रिपोर्ट जो है इसनों प्रोड्यूस किस दे द्वारा किया गया सी, इसनों प्रोड्यूस किया गया सी मुस्लिम लीग के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना ए ऑप्शन मुस्लिम लीग। इस तो इलावा तुसीं ये भी याद रखना है जो ये पिरपुर रिपोर्ट सी इसनों क्रिटिसाइज किया गया सी किस दे द्वारा, इंडियन नैशनल कांग्रेस के द्वारा। क्रिटिसाइज्ड बाय इंडियन नैशनल कांग्रेस, ये भी आपने याद रखना है। इसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन मुस्लिम लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स परटेनिंग टू द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT इज नॉट करेक्ट। यानी आपां नूं पूछा गया है किहड़ा फैक्ट है जो कि सही नहीं है नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के रिलेटेड NGT के रिलेटेड, किहड़ा सही नहीं है ये आपां नूं क्वेश्चन दे विच पूछा गया। सब तो पहला आपां नूं दिता गया है जो नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इसनों सैटअप किया गया सी 2010 ईस्वी के विच, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, उस तो बाद सैकेंड आपां नूं क्या गया है इट पर्पज इज टू इंश्योर इफेक्टिव एंड एक्सपेडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग एंड कंजरवेशन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड अदर नैचुरल रिसोर्सिज। बेसिकली कहने का मतलब कि इन्हां दा पर्पज की होंदा है इंश्योर करना इफेक्टिव एंड एक्सपेडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस। ये भी बिल्कुल सही आपां नूं दिता गया। थर्ड पॉइंट आपां नूं दिता गया है इट इज़ बाउंड। ये अपने को आएगा इट इज़ नॉट बाउंड, क्योंकि बाउंडेशन है जी नहीं देखने को मिलती आपां नूं। ठीक है, इस करके इस क्वेश्चन का आंसर किहड़ा बनूगा अपना, इस क्वेश्चन का बनूगा आंसर सी ऑप्शन। क्योंकि जो यह पॉइंट है यह इस दे विच नहीं आंदा, नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दे विच यह बाउंड नहीं है। इट इज़ नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है इसके अंडर है जिहड़ा ये बाउंड नहीं है, बट आपां नूं की क्या गया इट इज़ बाउंड। इस करके इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा बन गया अपना, इस क्वेश्चन आंसर बन गया सी ऑप्शन। और जो फोर्थ ऑप्शन दिता गया भी बिल्कुल सही आपां नूं दिता गया इट इज़ गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नैचुरल जस्टिस। ये भी बिल्कुल सही है, बट आपां नूं नॉट करैक्ट पूछा गया सी, गलत पूछा गया सी, तां इस करके इस क्वेश्चन का जिहड़ा आंसर है अपना वो बन जाएगा सी ऑप्शन। इट इज़ बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इस तो इलावा तुसीं ये भी याद रखो जो NGT है नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके जो प्रेजेंट टाइम ते उन्होंने जो प्रेजेंट टाइम ते जो चेयरमैन ने उन्होंने नाम पूछा जाता अपने एग्जाम के उन्होंने नाम है आदर्श कुमार गोयल, AK गोयल, आदर्श कुमार गोयल। ये भी अपने ध्यान में रखना है। इस तो इलावा जो नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है यह किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, यह आती है इन्वायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्स मिनिस्ट्री के अंडर। ठीक है, इन्वायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। प्रेजेंट टाइम पे जो इंडिया के इन्वायरनमेंट मिनिस्टर ने उन्होंने नाम है भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव। ये भी अपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2020 की
विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द इंडियाज रियल GDP ग्रोथ इन द ईयर 2021-22। यानी अपन पूछा गया है जो अपना करंट फाइनैशियल ईयर है 2021-22 इस दे विच जो इंडिया की जी रीयल GDP ग्रोथ है वह अपन किन्ने % देखने को मिलेगी। यह जो कहा गया सी इकनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग है जो अपन पूछा गया क्वेश्चन के विच। ठीक है, ऑप्शन दिते गए ने 9%, 11%, 13% या फिर 15%। इस इकनॉमिक सर्वे 2020 के अकॉर्डिंग इंडिया की जी रियल GDP ग्रोथ है 2021-22 के विच यह देखने को मिलेगी 11%। इस क्वेश्चन आंसर बनेगा अपना 11% यानी 11%। इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम। नमामि गंगे प्रोग्राम जो है इस दे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट्स 4 दी गई ने। इस दे विच आपां नूं पूछा गया है कि इस ऑप्शन के विच आपां नूं करैक्ट जी डिस्क्रिप्शन है वो नहीं दी गई, वो आपां नूं क्वेश्चन के विच पूछा गया। सब तो पहला आपां नूं पॉइंट दिता गया इस दे विच इट इज़ एन इनीशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये बिल्कुल सही है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है जी यह बनाई गई सी, नवा मंत्रालय बनाया गया सी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का। इस दे अधीन ठीक है इसका एक इनीशिएटिव सी नमामि गंगे प्रोजैक्ट प्रोग्राम जिस दे विच जो गंगा रिवर की सफाई की जानी सी। यानी अपना जो पहला पॉइंट दिता गया बिल्कुल सही दिता गया। उस तो बाद सैकेंड पॉइंट आपको दिता गया इट्स प्राइमरली कवर्स विलेजेस इन द स्टेट्स ऑफ यूपी, बिहार एंड उड़ीसा। यानी इस की क्या गया आपानू ये जो है नमामि गंगे प्रोग्राम इसका जो प्राइमरी फोकस है प्राइमरी कवरेज है वो किस दे विच है, यूपी दे विच है, बिहार दे विच है और उड़ीसा दे विच है। यह अपना जो स्टेटमेंट है बिल्कुल रॉन्ग है। यानी इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा बनूगा अपना बी ऑप्शन बनूगा। इस दे विच यूपी सही है, बिहार सही है बट उड़ीसा नहीं है इस दे विच। इस करके इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा बनूगा अपना बी ऑप्शन बनेगा क्योंकि अपन नॉट करैक्ट डिस्क्रिप्शन पूछा गया। ठीक है, इस दे विच काफ़ी सारिया स्टेट्स ने जिन्होंने कवर किया जा रहा है, जिमें ये यूपी दिता गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वैस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, और दिल्ली हो गया, उस तो बाद हिमाचल हो गया, हरियाणा हो गया और राजस्थान हो गया। यह सारिया स्टेट्स ने जिन्होंने हैल्प मिलेगी, फायदा होएगा इस नमामि गंगे प्रोजैक्ट का प्रोग्राम का। बट इस दे विच कवरेज है जी उड़ीसा की है जी नहीं की जा रही। इस करके अपना जो पॉइंट रॉन्ग दिता गया वो किहड़ा दिता गया है, बी ऑप्शन दिता गया। उस तो बाद थर्ड पॉइंट भी आप देख लें, इट एम्स टू मेक विलेजेस ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा ओपन डिफिकेशन फ्री। बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका एम की सी, इसका एम सी जो गंगा रिवर के किनारे के उपर ने, ठीक है, जो विलेजेस ने आले दुआले, ठीक है, उन्होंने ODF फ्री बनाना, ओपन डिफिकेशन फ्री बनाना। ये बिल्कुल सही है। उस तो बाद फोर्थ पॉइंट आपको दिता गया इट एम्स टू ट्रांसफॉर्म सम विलेजेस ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा एज गंगा ग्राम्स। ये भी बिल्कुल सही है। यानी इन्हों का एम की सी ओपन डिफिकेशन फ्री बनाना। ठीक है, और जो कुछ विलेजेस ने जो रिवर गंगा के किनारे वसे हुए हैं इन्हों ट्रांसफॉर्म करना गंगा ग्राम्स दे विच। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। बट अपन रॉन्ग पूछा गया तो आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ जोनल रेलवे एंड देयर हैडक्वार्टर्स इज नॉट करैक्टली मैचड। यानी आपको पूछा गया है इस दे विच इस तरफ आपको जो सेंट्रल रेलवेज ने वो दी गई ने और इस तरफ आपको इन्होंने हैडक्वार्टर्स दिए गए हैं। आपको पूछा गया है इन्हों के जोड़ा है वो सही मैच नहीं किया गया, वो आपको क्वेश्चन के पूछा गया। सब तो पहला है सेंट्रल नागपुर, ईस्टर्न कोलकाता, वैसटर्न मुंबई या फिर और लास्ट दे है अपने को नॉर्दर्न न्यू दिल्ली। ये अपने को 4 दिते गए हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा अपना वो किहड़ा बनेगा, सेंट्रल नागपुर। जो सेंट्रल रेलवे का जो हैडक्वार्टर है वो कितने नागपुर के नहीं है, यह मुंबई के विच है। ठीक है, इस करके इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा बन गया अपना सेंट्रल रेलवे का जो हैडक्वार्टर है वो कितने है, वो मुंबई के विच है। ठीक है, इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा बन गया अपना वो बन गया ए ऑप्शन सेंट्रल मुंबई। ठीक है, बाकी सारे बिल्कुल सही दिते गए हैं आपको, ईस्टर्न कोलकाता, वैसटर्न मुंबई और नॉर्दर्न न्यू दिल्ली ये बिल्कुल सही ने। बट जो अपना फर्स्ट दिता गया है बिल्कुल रॉन्ग आपको दिता गया। इस करके आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन देखो 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन के पूछा गया आपको ट्राई सर्विस कंटिजेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन इंडियाज रिपब्लिक डे परेड इन 2021। यानी आपको पूछा गया है ट्राई सर्विस कंटिजेंट जो है जो रिपब्लिक डे परेड 2021 के कंडक्ट किया गया है। ठीक है, इस दे विच किहड़ा देश है जिसके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। ऑप्शन दिते गए हैं म्यांमार, नेपाल, भूटान या फिर बांग्लादेश। इस दे विच पार्टिसिपेट किया गया है बांग्लादेश के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना डी ऑप्शन बांग्लादेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर इन द लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th शेड्यूल है इस बेसिकली जो लैंग्वेज ने इन्होंने मैंशन किया गया। टोटल कितनी लैंग्वेजेस ने 22 ने 22 ने, ठीक है। आपको पूछा गया इन्होंने किहड़ी लैंग्वेज है जो कि इस मैंशन नहीं किया गया है इस 8th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ऑप्शन है डोगरी, भोटी, मैथिली या फिर संथाली। इस जो सही उत्तर है अपना वो है भोटी। भोटी नाम की जो लैंग्वेज है यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल के मैंशन नहीं की गई। इस करके इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा बन गया अपना बी ऑप्शन बन गया भोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12 नंबर क्वेश्चन, एज अ रूटीन एक्सरसाइज ऑपरेशंस गर्म हवा एंड सर्द हवा कंडक्टेड बाय। यानी आपको पूछा गया है एक रूटीन एक्सरसाइज है जी ऑपरेशन है जोड़ा कंडक्ट किया गया गर्म हवा सर्द हवा, यह कंडक्ट किया गया है किस दे द्वारा कंडक्ट इसनूं किया गया। ऑप्शन ए BSF, ITBP, CRPF या फिर CISF। यह जो ऑपरेशन है इसनूं कंडक्ट किया गया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा यानी BSF के द्वारा। इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा बन गया अपना BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इस तो इलावा तुसीं ये भी याद रखो जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है इन्हां दे द्वारा अपना जो रेजिंग डे है वो किस डेट में मनाया जाता है। इन्हां दे द्वारा अपना जो रेजिंग डे है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर। और अगर तुहाडे तो पूछा जाए BSF के जो प्रेजेंट टाइम पर डायरैक्टर जनरल ने उन्होंने नाम की है, उन्होंने नाम है पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह यानी PK सिंह ने जोड़े ये प्रेजेंट टाइम पर की ने यह BSF के चीफ ने डायरैक्टर जनरल ने, यह भी तुसीं याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13 नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी। यानी एक पार्टी है जिसका नाम है स्वतंत्र पार्टी, इसके फाउंडर कौन ने, इसनों फाउंड किस दे द्वारा किया गया सी स्वतंत्र पार्टी में। ऑप्शन दिते गए ने सी राजागोपालाचारी, दीन दयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और आचार्य नरेंद्र देव। यह 4 ऑप्शन दिते गए हैं। और जो स्वतंत्र पार्टी है इसनों किस द्वारा फाउंड किया गया सी, यह फाउंड किया गया सी, इस पार्टी को फाउंड किया गया सी राजागोपालाचारी के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर अपना ए ऑप्शन सी राजागोपालाचारी। गांधी जी साल्ट मार्च टू दांडी वाज स्टार्टेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। यानी अपन पूछा गया है जो गांधी जी द्वारा साल्ट मार्च है यह दांडी तो स्टार्ट किया गया सी, ठीक है। अपन पूछा गया है कित्थों स्टार्ट किया गया सी, ठीक है। गांधी जी के द्वारा जो साल्ट सत्याग्रह सी यह दांडी तक चलाया गया सी, ठीक है। अपन पूछा गया है ये कित्थों स्टार्ट किया गया सी, ठीक है। ये अपन क्वेश्चन के पूछा गया। ऑप्शन दिते गए ने सब तो पहला कोचरब आश्रम, साबरमती आश्रम, ठीक है। उस तो बाद है अहमदाबाद टैक्सटाइल मिल या फिर अहमदाबाद जेल। यह जो साल्ट सत्याग्रह है साल्ट मार्च जिन्होंने आप बोलते हैं इसनों स्टार्ट किया गया सी गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम तो। इस क्वेश्चन आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन साबरमती आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द सोशलिस्ट ग्रुप इन द कांग्रेस पार्टी। यानी कांग्रेस पार्टी का जो सोशलिस्ट ग्रुप सी इस दे विच कौन मैंबर नहीं सी इन्हां 4 ऑप्शन के विचों। ऑप्शन दिते गए हैं जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, NG रंगा या फिर नरेंद्र देव। जो नैशनल कांग्रेस पार्टी सी इस जो सोशलिस्ट ग्रुप सी इस पूछा गया है कौन मैंबर नहीं सी, इस जो मैंबर नहीं सी उन्होंने नाम है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद इस मैंबर नहीं सी। इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा बन गया अपना बी ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद। जो राजेंद्र प्रसाद ने यह फर्स्ट प्रेजिडेंट बने सी, ये आपने याद रखना है इंडिया के राजेंद्र प्रसाद। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विल बी डायरैक्टली कनेक्टेड विद असम बाय द प्रपोज्ड बिल ब्रिज बिटवीन धुबरी एंड फुलबरी ओवर रिवर ब्रह्मपुत्रा। यानी ब्रह्मपुत्रा नदी के उपर ब्रिज बनाया गया है धुबरी एंड फुलबरी, ठीक है। अपन पूछा गया है यह जो ब्रिज है यह असम को किस स्टेट के नाल कनैक्ट कर रहा है, ये अपन क्वेश्चन के पूछा गया। ऑप्शन दिते गए हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, वैस्ट बंगाल या फिर मिजोरम। यह जो धुबरी एंड फुलबरी ब्रिज है यह ब्रह्मपुत्रा रिवर के उपर बनाया जा रहा है, ठीक है। यह कनैक्ट कर रहे हैं असम को मेघालय के नाल। इस आंसर अपना बी ऑप्शन मेघालय। बेसिकली ये नॉर्थ ईस्ट के बनाया जा रहा है, असम और मेघालय को आपस में कनैक्ट किया जा रहा है इस ब्रिज के द्वारा। इस आंसर अपना बी ऑप्शन मेघालय। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज एशियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसैसिंग जोन EPZ सेटअप इन 1965।
यानी आपां नूं पूछा गया है किस प्लेस के उपर एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसैसिंग जोन जो है इसनों सैटअप किया गया सी 1965 के विच। ऑप्शन दिते गए ने अहमदाबाद, कांडला, मुंबई या फिर जयपुर। जो एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसैसिंग जोन है इसनों सैटअप किया गया सी कांडला के विच। कांडला कित्थे? गुजरात के विच। इस करके आंसर की बनूगा इस क्वेश्चन का? बी ऑप्शन बनेगा, कांडला, गुजरात। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द स्कीम इंट्रोड्यूस्ड एज वेल एज टारगेटेड सिस्टम ऑफ सर्विस डिलीवरी ऑफ LPG कस्टमर्स। यानी आपां नूं पूछा गया है उस स्कीम का नाम दसो जिसका टारगेट की सी जो सर्विस डिलीवरी है प्रोवाइड करना LPG कस्टमर्स नूं। यह जो स्कीम सी इसका नाम पूछा गया। ऑप्शन है सहज, पहल, उदय या फिर उड़ान। इस स्कीम का जो नाम है वो है पहल। इस क्वेश्चन आंसर है अपना बी ऑप्शन, पहल। पहल नाम की जो स्कीम है ये मोदी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई सी, जिस दे विच LPG जिहड़े कनैक्शनस ने ये भी प्रोवाइड किए जा रहे सी और इस दे विच जो सर्विस डिलीवरी है सिस्टम यह भी है जिहड़ा प्रोवाइड करने का टारगेट सी इस स्कीम का। इसका आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन, पहल। इन द ईयर 1911 यानी 1911 हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मड द सोशल सर्विस लीग इन बॉम्बे। सोशल सर्विस लीग बॉम्बे के विच किस दे द्वारा फॉर्म की गई सी 1911 ईस्वी के विच। ऑप्शन दिते गए ने गोपाल कृष्ण गोखले, GK गोखले, SA डांगे, NM जोशी या फिर MR जायकर। सोशल सर्विस लीग बॉम्बे के 1911 के इसनों फॉर्म किया गया सी NM जोशी के द्वारा। इसका आंसर है अपना सी ऑप्शन, NM जोशी। Who among the following was not part of the group of no changes in the Congress party। जो कांग्रेस पार्टी सी बेसिकली ये दो भागों के डिवाइड हो गई सी, एक सी नो चेंजर्स, एक सी प्रो चेंजर्स। ठीक है, इस आपको पूछा गया है नो चेंजर के ग्रुप का जो मैंबर नहीं सी उस परसन का नाम पूछा गया। ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, मोती लाल नेहरू। इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा है? मोती लाल नेहरू। लाल बाल पाल जो सी ये सारे प्रो चेंजर सी, बाकी सारे जिहड़े सी ये की ने नो चेंजर। इस करके आंसर किहड़ा बन गया अपना? डी ऑप्शन बन गया, मोती लाल नेहरू, डी ऑप्शन। यह क्वेश्चन तुहाडे सब दे लिए है जिसका आंसर तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दसना है। हू अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मैंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो है इस दे विच दिते गए 4 ऑप्शनों के विचों कौन मैंबर नहीं सी इस कैबिनेट मिशन का, ये पूछा गया आपां नूं। ऑप्शन दिते गए ने पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, AV अलेगजेंडर या फिर लॉर्ड वेवल। ठीक है, यही 4 ऑप्शन ने, इन्होंने एक मैंबर है जिहड़ा ये कैबिनेट मिशन का जिहड़ा मैंबर है वो नहीं सी, उही तुहानूं मैनूं कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दसना है। ये सी अपने 20 क्वेश्चनस जो कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपने कवर किए हैं इस सैट नंबर 1 के विच। कमेंट बॉक्स में लिख के दसना है तुहानूं किन्ने क्वेश्चन तुहानूं सही अटैम्प्ट किए हैं इस सैट नंबर 1 के विच। ठीक है, इस तो इलावा साडे द्वारा स्पैशल जिहड़े नोट्स ने वो तैयार किए गए हैं स्पैशल फॉर नैब तहसीलदार एग्जाम। जिस तरह के क्वेश्चन तुहानूं इस सैट नंबर 1 के देखे ने सेम क्वेश्चन आपने इस नोट्सां दे विच सारे के सारे जिहड़े ने कवर किए हुए हैं। इन्हां नोट्सां तो ही आपने जिहड़े ये क्वेश्चन ने यह MCQ के रूप के तैयार करके तुहाडे लई जिहड़ा सैट नंबर 1 है वह रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, तुसीं अंदाजा लगा सकते हो कि नैब तहसीलदार के जिहड़े नोट्स का लैवल होएगा वह की लैवल होएगा। वधिया तो वधिया लैवल आपने बना के पाने की कोशिश करी है इन्हां नोट्सां दे विच। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अपने नोट्स कवर किए हैं। ठीक है, इस बेसिकली इंडियन पॉलिटी, इकनॉमिक्स, जोग्राफी, मॉडर्न हिस्टरी, पंजाब GK और बायोलॉजी ये 6 सबजैक्ट्स ने जिन्हों के अपने नोट्स तैयार किए हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के अपने जोड़े नोट्स ने वो तैयार किए हैं। ये सारे के सारे नोट्स और तुहानूं PDF फॉर्मेट के साडी तरफ तो सेंड होणगे। ये स्पैशल नोट्स फॉर नैब तहसीलदार एग्जाम किमें परचेज कर सकते हो? इसके जोड़े चार्जिस ने सिर्फ और सिर्फ 200 रुपया पर सबजैक्ट रखे गए हैं। यानी अगर तुम 6 सबजैक्ट के परचेज करना चाहते हो तो तुहानूं ये जोड़े नोट्स ने 1200 रुपये के मिलणगे। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड जोड़े नोट्स ने ये आपने बनाए हैं क्योंकि टाइम आपको पता है बहुत ही घट है इस पेपर के विच। ठीक है, इसलिए तुसीं अपनी जी तैयारी है इन्हां नोट्सां तो तैयारी कर सकते हो। वधिया लैवल के अपने कंटेंट तैयार करके पाया इन्हां सारे नोट्सां दे विच। ठीक है, PCS और UPSC लैवल के जोड़े नोट्स ने अपने ये तैयार किए हैं क्योंकि नैब तहसीलदार का जोड़ा एग्जाम है बिल्कुल PCS पैटर्न के उपर रहने वाला है। इसलिए तुसीं जोड़े नोट्स ने इन्हों परचेज कर सकते हो। वधिया लैवल का अपने कंटेंट करके तैयार पाया इन्हां नोट्सां दे विचों। ठीक है, इस तो इलावा साडे द्वारा एक स्पैशल गैस पेपर भी तैयार किया गया। ये जोड़े नोट्स ने यह कंप्लीटली थ्योरी नोट्स होंगे।
ठीक है। इस दे विच कोई भी MCQ नहीं होएगा, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी नोट्स होणगे, ठीक है। इस तो इलावा स्पैशल गैस पेपर भी आपने तैयार करके बनाया है, जिस दे विच आपने 12,000 प्लस क्वेश्चनस पाए ने इस गैस पेपर दे विच। यह सारा जिहड़ा गैस पेपर का कंटेंट है यह तुसीं देख सकते हो, यह सारा कुछ तुहानूं यह दिता जाएगा इस गैस पेपर दे विच, ठीक है। इस गैस पेपर के चार्जिस कितने ने 1000 रुपीज़ ने, ठीक है। 200 रुपये का तुहानूं डिस्काउंट मिलेगा और इस गैस पेपर के जिहड़े फाइनल चार्जिस ने वो कितने ने 800 रुपया, ठीक है। 800 रुपये के तुहानूं स्पैशल जिहड़ा गैस पेपर है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अगर तुसीं ने नोट्स पहला परचेज कर लिए सी तां तुसीं ये जिहड़े गैस पेपर है ये परचेज कर सकते हो। सिंगल गैस पेपर मिलेगा, ठीक है। ये तुहानूं ध्यान में रखना है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल गैस पेपर मिलेगा, एक गैस पेपर मिलेगा तुहानूं। सारे जिहड़े MCQs होणगे उन्हां दे विच कवर होणगे तुहानूं सिर्फ और सिर्फ 800 रुपये दे विच, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट नोट्स प्लस गैस पेपर परचेज करना चाहता है, क्योंकि आपां नूं पता है आपां नूं पहलां थ्योरी नोट्स तैयार करने पैणगे, ठीक है। आपां नूं थ्योरी नोट्स तो कवर करना पेगा सारा सिलेबस, उस तो बाद आपां प्रैक्टिस कित्थों करांगे MCQs तो। MCQs तुहाडे कित्थों कवर होणगे गैस पेपर तो। इसलिए साडे द्वारा रिकमेंड किया जाता है पूरा पहला तुसीं नोट्सां नूं तैयार करो, ठीक है। उस तो बाद जिहड़े गैस पेपर दे विच MCQs पाए गए ने इन्हां नूं रीड करो बार-बार, ठीक है। ये 12,000 जोड़े क्वेश्चन ने बिल्कुल अपने एग्जाम ओरिएंटेड पाए ने, जिस तरह का लैवल तो हमने इस सैट नंबर 1 के देखा बिल्कुल सेम लैवल है जोड़ा आपने इन्होंने पाया इस गैस पेपर के। तुसीं खुद अंदाजा लगा सकते हो किस लैवल के क्वेश्चन आपने इस पाए होंगे, ठीक है। अगर तुसीं दोनों चीज़ां परचेज करना चाहते हो, साडे द्वारा पूरा रिकमेंड किया जाता है कि दोनों चीज़ां परचेज करो, ठीक है। दोनों के विचों ही तुहाडा जिहड़ा पेपर है काफ़ी ज़्यादा जिहड़ा देखने को मिलेगा। जिमें तुहानूं पहलां तो ही कहते आए हैं पटवारी का एग्जाम, ठीक है, जिमें नोट्स प्रोवाइड किए सी लगभग सारा एग्जाम है जिहड़ा देखने को मिले तुहानूं, ठीक है। उस तो बाद जेल वार्ड का एग्जाम होया सी, ठीक है। उस तो बाद पंजाब पटवारी का, जेल वार्डर का और कोऑपरेटिव बैंक का होया सी एग्जाम। जो भी पंजाब दे विच पंजाब लैवल के एग्जाम हो रहे हैं सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ कंटेंट है प्रोवाइड किया जाता है उन्होंने ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए साडे द्वारा पूरा रिकमेंड किया जाता है यह स्टडी मटीरियल, ठीक है। अगर तुसीं दोनों चीज़ां परचेज करना चाहते हो तो तुहाडे जिहड़े जनरल नॉलेज है यानी जिसनों आपां GA भी बोलते हैं जनरल अवेयरनैस, ठीक है, 80 मार्क्स ही तुहाडे पेपर दे विच आएगी, ठीक है। अगर आपां गल करिए इन्हां दे नोट्सां दे चार्जिस ही 1200 रुपये चार्जिस ने, ठीक है। और ये जिहड़े 6 सबजैक्ट ने यह तैयार करके पाए ने आपने मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, जोग्राफी, इकोनॉमी, पंजाब GK और बायोलॉजी, ठीक है। 6 सबजैक्ट ने ये और गैस पेपर के चार्जिस कितने ने 800 रुपया। अगर आप इन्होंने दोनों मिला दिए तो अपने को चार्जिस कितने हो गए 2000 रुपया, बट तुहानूं 2000 रुपये पे करने की जरूरत नहीं है, 10% तुहानूं डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। 200 रुपये का तुहानूं की मिलेगा डिस्काउंट मिलेगा, तो तुहानूं जिहड़े फाइनल चार्जिस पैणगे पे करने पैणगे तुहानूं कितने पैणगे 1800 रुपये, ठीक है। 1800 रुपये तुहानूं पे करने ने। तुहानूं यह जो नोट्स प्लस गैस पेपर है तुहानूं PDF फॉर्मेट के विच साडी तरफ तो सेंड कर दिता जाएगा। याद रखना है यह जिहड़े नोट्स और गैस पेपर ने इंग्लिश लैंग्वेज के विच होणगे और PDF फॉर्मेट के साडी तरफ तो सेंड किए जाएंगे, ठीक है। अगर आप गल करिए पेमेंट प्रोसीजर किवें है, किवें पेमेंट करोगे तुसीं, गूगल पे, फोनपे, पेटीएम, सेम नंबर है अपना 7009868826। इस नंबर के उपर तो गूगल पे, फोनपे, पेटीएम कोई भी तुसीं यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इस उपर तो पेमेंट कर देनी है 1800 रुपये, ठीक है। अगर तुसीं गैस पेपर प्लस नोट्स परचेज करना चाहते हो तो 1800 पे करना है। अगर तुसीं नोट्स परचेज करना चाहते हो तो 1200 पे करना है। अगर तुसीं सिर्फ और सिर्फ गैस पेपर परचेज करना चाहते हो तो तुहानूं 800 रुपये पे करना है, ठीक है। इस उपर पे कर देना, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हो तुसीं, ठीक है। उस तो बाद तुहानूं इस नंबर के उपर सेम नंबर के उपर WhatsApp के उपर अपना जो स्क्रीनशॉट है वो सेंड करना है और नाल तुहानूं यह जरूर लिखना है कि नोट्स चाहिए ने तुहानूं गैस पेपर चाहिए है या दोनों चाहिए ने, यह तुहानूं जरूर मैंशन करना है। साडी तरफ तो 1 घंटे के विच तुहानूं जिहड़े जो भी तुसीं परचेज करोगे साडी तरफ तो सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह यूज़ नहीं करता तो वह स्टूडेंट बैंक के भी ट्रांजैक्शन कर सकता है। यह अपना अकाउंट नंबर है तुसीं देख सकते हो और IFSC वगैरह नेम सारा कुछ इत्थे जिहड़ा है बैंक की डिटेल है जिहड़ी वो मैंशन की गई है। तुसीं जिहड़ी पेमेंट है यह बैंक के भी ट्रांजैक्शन है जी करके अपनी जी रिसिप्ट है वो सेंड कर सकते हो, तो भी तुहानूं जिहड़े नोट्स ने साडी तरफ तो सेंड कर दिए जाएंगे। ये सी कंप्लीट डिटेल अपने इन्हां नोट्सां के बारे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अपने नोट्स बनाए ने, ठीक है। अगर बाय करना चाहता तो जल्दी तो जल्दी बाय कर सकता है क्योंकि टाइम ही बहुत ही घट बचा है, ठीक है। अगर कोई तुहानूं डाउट है ना नोट्सां के रिलेटेड तो तुसीं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो 7009868826, ठीक है जी। ये सी अपना PPSC के पंजाब नायब तहसीलदार के एग्जाम के लिए जनरल अवेयरनैस का सैट नंबर 1 जिस दे विच आपने 20 क्वेश्चन कवर किए हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आपने कवर किए हैं। तुसीं खुद अंदाजा लगा सकते हो किस लैवल के क्वेश्चन ने जिहड़े ये गैस पेपर के नोट्सां के तैयार करके पाए होंगे। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आपने कंटेंट कवर किया इन्हां नोट्सां के गैस पेपर के, ठीक है। अगर तुहाडे इन्हां
20 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਜਾਂ ਫਿਰ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ज़्यादा ਤੋਂ ज़्यादा करनी है, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ठीक है, इस सैट नंबर 1 ਦੇ ਵਿੱਚ बस इन्ना ही। मिलते हैं सैट नंबर 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, शेयर कर ਦਿਓ। अगर तुमने साडा चैनल हाले तक पंजाब IQ ਨੂੰ सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर लियो, ताकि इस तरह की जो डिटेल्स वीडियो होंदियां ने इन्हां नूं तुसीं बिल्कुल भी मिस ना कर पाओ। अगर तुसीं इस सीरीज़ की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो तुसीं साडा जिहड़ा टैलीग्राम चैनल है जिसका नाम है पंजाब IQ, इस नूं ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उत्थे जिहड़ियां PDFs ने उत्थे ही पोस्ट कीतियां जांदियां ने टैलीग्राम चैनल के उपर। ठीक है, अगर तुहानूं डाउट है कोई इन्हां 20 क्वेश्चनस दे विच, ठीक है, तो तुसीं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। इस सैट नंबर 1 दे विच बस इन्ना ही। मिलते हैं इस सीरीज़ के सैट नंबर 2 दे विच। सो थैंक यू सो मच।